Here we have some more examples. The first example is express the velocity and acceleration of a particle in spherical coordinates. ठीक है, हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स से फाइंड कर चुके हैं. उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. So first consider the expression for position vector r. R is equals to xi plus yj plus zk, and we have to transform this position vector in terms of spherical polar coordinates. So we use the transformation equations. X is equals to r sine theta cos phi, y is equal to r sine theta sin phi, and z is equal to r cos theta. ये relations ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यहाँ रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जी की जगह. Further, we also need the expressions of ijk in terms of er, e theta, and e phi, which are the basis vectors for spherical polar coordinate system. ठीक है? We have evaluated these expressions of ijk in terms of er, e theta, and e phi, which are these. ये ijk के expressions हैं जो लास्ट अभी हमने फाइंड किए हैं. ये expressions ijk के in terms of er, e theta, e phi और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम आर के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये पूरी एक इक्वेशन आ जाएगी. After simplifying this equation, all the terms of e theta hat and e phi hat are cancelled out, and we are left only with r is equals to r vector is equals to r er hat. ये expression रह जाएगा हमारे पास, which is expression of position vector in spherical polar coordinates. ठीक है? And we have to find the expression of velocity. हमने velocity की expression find करना है. So taking the time derivative of this expression, we have v is equals to d by dt of r, which is equals to d by dt of r er hat. So applying the product rule, हमारे पास क्या आ जाएगा? r dot er hat plus r d by dt of er hat. ठीक है, तो यहाँ d by dt of er hat भी हम फाइंड कर चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया. d by dt of er hat आपके पास है थीटा डॉट e theta hat plus sin theta e phi hat phi dot. तो आफ्टर रिप्लेसिंग दिस एंड सिंप्लीफाइंग आपके पास ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. वेलोसिटी वेक्टर जो है उसका फर्स्ट कंपोनेंट ई आर हैट के अलोंग आर डॉट है, ई थीटा हैट के अलोंग ये आर थीटा है डॉट है, और ई फाई हैट के अलोंग ये आर साइन थीटा फाई डॉट है. ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के अलोंग द बेसिस वेक्टर्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. Next, we have to find the expression of acceleration, which is the time derivative of velocity. तो ये जो हमारे पास velocity का expression आया है spherical polar coordinate system में, इसको again differentiate करें with respect to time. और यहाँ भी product rule लगेगा, यहाँ भी हर term में product rule लगेगा. तो after simplifying these whole आपके पास ये relation last वाला आ जाएगा. इसमें er hat के साथ ये expression आ रहा है, e theta hat के साथ ये सारा expression है, e phi hat के साथ ये तीन components हैं acceleration के in terms of spherical polar coordinate system. The next example is represent the following vector in spherical polar coordinates. जिस तरह हमने velocity और acceleration को convert किया spherical polar coordinates में, तो हमने x, y, z की जगह भी transformation equations यूज की हैं और i, j, k के expressions भी replace किए in terms of er hat, e theta hat and e phi hat. तो similarly यहाँ भी a हमारे पास है a is equals to 2yi minus zj plus 3xk. ठीक है, तो y, z और x की जगह तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ जाएंगी और i, j, k की जगह इनके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ er hat, e theta hat एंड e phi hat. तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो वेक्टर a है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, so using these all relations i, j, k के expressions in terms of er hat, e theta hat, e phi hat, ये and the transformation equations x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi and z is equals to r cos theta. सारी वैल्यूज हम जब वेक्टर a में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वेक्टर a के कंपोनेंट्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आ जाएंगे. ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करेंगे तो उनमें ई आर हैट की टर्म्स को कंबाइन करें, ई थीटा हैट की टर्म्स को कंबाइन करें और ई फाई हैट की. तो ई आर हैट के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो इसका इस वेक्टर का रेडियल कंपोनेंट है और ये ए थीटा है, ये ए फाई है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ये आ जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं. सिंप्लीफाई करके ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करें और सिंपली ई आर हैट, ई थीटा हैट और ई फाई हैट की टर्म्स को सेपरेट कर लें, तो आपके पास ये वेक्टर का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. The next example is express the following
in spherical polar coordinates. First one is the equation of sphere, x square plus y square plus z square is equal to 9. Using the transformation equations, x, y, z की जगह इनकी transformation equations replace करें. X is r sin theta cos phi, y is r sin theta sin phi and z is r cos theta. And after simplifying हमारे पास आ जाएगा r square is equal to 9. R square is equals to 9 means r is equals to 3. So the next one is the paraboloid z is equals to x square plus y square. इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू r sin square theta. The next part is we have to transform this equation y is equal to x which is the plane. ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है y is equal to x. इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. तो y और x की जगह इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिप्लेस करें. y is r sin theta sin phi and x is r sin theta cos phi. तो यहाँ से इसको r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, sin theta भी कैंसिल हो जाएगा. Sin phi is equal to cos phi implies tangent phi is equal to 1 which implies phi is equal to tangent inverse 1. और phi का हमने वेरिएशन पढ़ी थी स्टार्ट में जहाँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, दैट phi lies between 0 to 2 pi. ठीक है, तो phi 0 to 2 pi के बिटवीन कहाँ कहाँ टेंजेंट इनवर्स 1 आता है, दैट इज phi is equal to pi by 4 and phi is equal to 5 pi by 4. phi की ये दो वैल्यूज हैं, तो ये दो प्लेन्स हैं आपके पास, phi is equal to pi by 4 and phi is equal to 5 pi by 4. The next one is z square is equal to 3x square plus y square. कौन की इक्वेशन है और इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. उसी तरह से सारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस. और थीटा की हमें पता है रेंज 0 to पाई तक है, तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा पाई बाई 6. तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन है आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं. जो भी आपको गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अगर आपको गिवन है तो आप उनको यूज़ करके किसी दूसरे सिस्टम में उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं. लास्ट पार्ट इज द प्लेन z इज इक्वल टू 0. इस प्लेन को चेंज करना है हमने, तो z की वैल्यू है r cos थीटा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है then this implies z is equal to 0 implies r cos theta is equal to 0, but r cannot be equal to 0, so this implies cos theta is equal to 0 and theta is equal to cos inverse of 0. और थीटा जो है वो 0 to पाई के बिटवीन है और इसमें सिर्फ एक वैल्यू है जहाँ cos 0 हो सकता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, तो ये आपके पास द प्लेन z इज इक्वल टू 0 corresponds to थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लेन. ठीक है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, we have to express the heat equation partial u by partial t is equal to kappa del square u in spherical coordinates if u is independent of phi. सेकेंड पार्ट है phi and theta and थर्ड पार्ट है r and t, d पार्ट है phi theta and t. हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में कि अगर u इंडिपेंडेंट ऑफ phi है तो ये हीट इक्वेशन इसको जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आती है. फर्स्ट कंसीडर दिस हीट इक्वेशन. To convert this equation in spherical polar coordinates हमने del square का expression replace करना है in terms of spherical polar coordinates. del square u हमारे पास ये है for spherical polar coordinates. ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन आप याद रखें, उसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के स्केल फैक्टर्स रिप्लेस कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. where u is independent of phi means कि आपके पास phi के रिस्पेक्ट u के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दैट गोज टू 0, दिस टर्म गोज टू 0, तो सिर्फ ये फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास रह जाएंगी. सो पार्शियल u बाय पार्शियल t, ये जो हीट इक्वेशन थी ये क्या बन जाएगी, पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू कैपा और डेल स्क्वायर u की जगह ये टर्म आ जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स आएंगी, थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. व्हेन u इज इंडिपेंडेंट ऑफ phi तो आपके पास ये हीट इक्वेशन ये बनेगी. सिमिलरली व्हेन u इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, जब थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट होगा तो थीटा और फाई के रिस्पेक्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी 0 हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फर्स्ट टर्म के. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड टी. आर एंड टी से इंडिपेंडेंट मीन्स कि पार्शियल यू बाय पार्शियल टी भी 0 हो जाएगा और आर वाला एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा, और जो लास्ट टू वैल्यूज हैं इस डेल स्क्वायर यू की, ठीक है, ये लास्ट टू वैल्यूज हैं ये रह जाएंगी आपके पास, और इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा. लास्ट पार्ट था आपने चेक करना है कि हीट इक्वेशन क्या बनती है व्हेन u इज इंडिपेंडेंट ऑफ phi theta and t.
ठीक है। व्हेन यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई थीटा एंड टी, तो फाई थीटा और टी के रिस्पेक्ट सारे डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। तो यू इज ओनली डिपेंडेंट ऑन आर, तो आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो टर्म है ये रह जाएगी डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्र डी यू बाई डी आर, and derivative of this whole term is equal to 0 means this term is constant. So we can write it r square du by dr is equals to some constant.